معاہدہ جو بھارت عرب امارات میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ دفاع سمیت 75 ارب ڈالر کے 14 معاہدے 3 برس کے دوران تجارتی حجم 7% تک بڑھانے پر اتفاق. کیا کہتے ہیں اس معاہدے کے حوالے سے پاکستان اور پاکستان کی خارجہ پالیسی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹو بی ویری آنےسٹ آج اور کل کا دن ایٹ لیسٹ آئی واز ویری اپسیٹ بیکاز فار دا فرسٹ ٹائم آئی کیم ٹو نو کہ آج 26 جنوری ہے. 26 جنوری کو جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ بلیک ڈے منا رہے ہیں کشمیر کے اندر, کیونکہ پچھلے 7 مہینے آلموسٹ ہو گئے ہیں انہوں نے کشمیر کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا ہے. بالکل ایسے ہی 7.5 لاکھ فوج ہے, پولیس ہے, اور جس طرح کی چیرہ دستیاں, جس طرح کی سختیاں, جس طرح کا ریاستی تشدد ہے, واقعی کسی سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون جتنے بھی ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں, آپ کے چینل نے اور ایون نوائے وقت نے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول پلے کیا ہے کشمیر کے لیے, کشمیر کاز کے لیے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے. آلرائٹ, سو واٹ ہیپن کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک پہلا عرب ملک ہے جس کا ملٹری کنٹینجنٹ یو اے ای کا وہ آج اس پریڈ کا حصہ بن رہا ہے جو کہ آج 26 جنوری کو ہو رہی ہے. اوکے, گڈ انف. ایوننگ میں دین آئی کیم ٹو نو کہ جو برج الخلیفہ ہے وہ ان کا جو ترنگا جھنڈا ہے انڈیا کا وہ اٹ واز ہیونگ دیٹ کلر. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اینڈ دین ان دی مارننگ آئی کیم ٹو نو کہ $75 بلین کا ایگریمنٹ جو ہے وہ یو اے ای کے اندر اور انڈیا کے اندر ہونے جا رہا ہے, اور وہ اس کو انکریز کر رہے ہیں. انکریز کرنے پہ ہے ایگری کیا انہوں نے کہ 7% کے اوپر. گڈ انف, فائن, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ہے 2 ممالک کا ایگریمنٹ, بالکل ان کو چلنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں ویئر پاکستان سٹینڈز. آج ہماری فورن آفس کو ہمارے فورن جو 2 لوگ ہیں, طارق فاطمی ہیں اور سرتاج عزیز ہے, اور ایون آف دیٹ میٹر پرائم منسٹر جس نے کہ فارن منسٹر کا بھی عہدہ سنبھالا ہوا ہے, کیا ان کے آج شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ بینگ این اسلامک کنٹری کہاں پہ ہماری فارن پالیسی سٹینڈ کرتی ہے, کہاں پہ ہمارا فارن آفس کام کرتا ہے. ہم انڈیا کس لیول کے اوپر پاکستان کو, مطلب پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے تو اینٹ سے اینٹ بجائی ہے, ہر طریقے سے کہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کلبھوشن یادو کو لے لیں, بلوچستان کو لے لیں, بلوچستان میں لادگی پسندوں کو فنڈ کرنا, ٹرین کرنا, آپریشن ان کے کرانا, کراچی کے اندر دیکھ لیں جو کچھ ہو, ہر چیز سامنے آئی ہے آپ کے. انڈین ایمبیسی اس کے اندر انوالو ہے آپ کی, بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ایل او سی ورکنگ باؤنڈری کے اوپر سرجیکل اسٹرائک آپ لے لیجئے, اسی کے ساتھ آپ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور ایک اسلامی ملک ہے وہ ان کے ساتھ $75 بلین کا یہ آئی سے کے ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے. اور مودی جب گیا سعودی عرب کے اندر تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ سب سے اعلیٰ ترین سول اعزاز جو ہے وہ آپ نے مودی کو دیا. اب وٹ رول سو فار انڈیا ہیز پلیڈ فار دی بیٹرمنٹ آف اوکے جی مڈل ایسٹ کے سارے ممالک کی طرف انہوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی سیریس لمحہ اس وقت سوچنے کا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, پاکستان کدھر جا رہے ہیں, اسلامی ممالک کدھر جا رہے ہیں. آپ یہ وہ لوگ ہیں, ٹو بی ویری آنےسٹ, ہمیں لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے میں تو یہ آج یہ الفاظ بھی استعمال کروں گا کہ ایسے بے شرم لوگ اس ملک کو حکمرانی کر رہے ہیں کہ ان عربیوں کو کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے ملک کے اندر شکار کریں, اور اگر آپ شکار ان کو نہیں کرانے کی اجازت دیتے تو آپ کے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. از انڈیا ڈوئنگ آل دیز تھنگس؟ ٹو بی ویری آنےسٹ انڈیا کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز لنک کر کے بولوں گا. کل آپ ہی کے پروگرام میں ڈسکشن کے اندر میں ایک چیز لے کر آئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ انڈین فلموں کو پاکستان کے اندر چلنے کی اجازت دی جائے, اور حکومت نے ایک خصوصی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی تھی. بالکل ٹھیک ہے. کل کی جو لیٹسٹ نیوز یہ تھی کہ اس خصوصی کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دی ہیں پرائم منسٹر کو کہ ہاں حالات اس طرح کے ہیں تو انڈین فلموں کو اس ملک کے اندر چلانے کی اجازت دی جائے. میں لیٹ می آسک ون کوسچن, آئی ایم ناٹ دیٹ وے نیگیٹو, میں یہ کہوں کہ نہیں 2 ممالک کے اندر ہمارے یہ ثقافتی رشتے نہیں ہونے چاہیے, بٹ کیا ان ثقافتی رشتوں کو قائم رکھنا صرف پاکستان کی ذمہ داری آتی ہے؟ صحیح. کیا آپ کے فنکار وہاں جا کے کام کر سکتے ہیں؟ آر دے سیکیور؟ کیا پاکستانی فلمیں انڈیا کے اندر چل سکتی ہیں؟ کیا جس طریقے سے ہندو شدت پسندی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ سارا کچھ وہ ٹھیک چل رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے اوپر وہاں سختی نہیں ہو رہی, کشمیریوں کے اوپر سختی نہیں ہو رہی؟ کیا انڈیا والے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر تمام دہشت گردی تخریب کاری کی کارروائیاں نہیں کر رہے؟ اور اب تک وہ اس ساری چیز کے اندر ہیں. ابھی پچھلے ویک کی بات ہے کہ آپ نے اتنا بڑا نیٹ ورک گلگت بلتستان کے اندر پکڑا ہے جو کہ فنڈ کر رہا تھا. 30 کروڑ روپے کی فنڈنگ ابھی تک ہو چکی تھی جو کہ را نے کی تھی. ان کو را اور جو این ڈی ایس کا نیکسس ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے بعد ورکنگ باؤنڈری ایل او سی کے اوپر دیکھ لیں,
निहत्ते हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, बसों के ऊपर वो शेलिंग करते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं, हमारे फौजियों को शहीद करते हैं. एंड इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस. और हम कहें कि हमारे अंदर इंडिया की फिल्में चलनी चाहिए. आई वुड सिंपली से कि हुकूमत को बहुत सोच समझ के इन सारे इकदाम को करना चाहिए. कल भी उनका रिपब्लिक डे है जी बिल्कुल, और वहाँ के मेहमान खुसूसी होते हैं. खुद गए थे मोदी साहब उनको रिसीव करने. प्रिंस, पता नहीं हमारे पास वक्त है या नहीं, वहाँ जो उन्होंने तकरीर की थी वो अगर दिखा दी जाए थोड़ी सी, तो साथ ही अगर विंडो में हम दिखा पाएं कि आज हमारे ब्रादर मुल्क यूएई में बुर्ज खलीफा को किस रोशनी के साथ जी जी, जिसके लिए हम अपने तिलोर को मारते हैं, पूरी पॉपुलेशन खत्म कर रहे हैं, फिर झंडा लगता है तो भारत का. मुझे समझ नहीं आती कि सऊदी अरेबिया से उसने नुसरत साहब अपने ताल्लुकात अच्छे किए, यूएई से उसने अपने ताल्लुक, याद है क्रिकेट स्टेडियम में कितना बड़ा खिताब किया उसने. इसमें जो मौसूफ ने हम क्या की वो की, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंस नहीं, तो ये सारी उसने ग्राउंड वर्क डाली है. तो ये सारा करके, और देखो ये क्राउन प्रिंस का ताल्लुक हमारे वो बर्ड्स मारते जाते हैं और फिर भी से है, हमारा नहीं लगाते. इट्स नॉट द क्वेश्चन, मतलब कोई बात नहीं, वो इशू नहीं है ना. अरे मतलब अगर आप लार्जर बिग पिक्चर में में देखें तो इतना बड़ा, यानी प्रोबेबली ठीक है. नहीं तो जाए ना, भारत में नहीं होते तिलोर, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी मारते हैं. हाँ, अच्छा, सारे ऐसी बात नहीं है. वो अशराफिया को दुनिया भर में इस तरह के लोग मौके देते हैं. लेकिन ये जो अलायंस, ये जो बढ़ते हुए ताल्लुकात है, अबू धाबी जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, दुबई बेसिकली ट्रेडिंग हब है. राइट, ये क्राउन प्रिंस वहाँ के हैं. अच्छा, अब इनका वहां जाना और एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाना, और ये इट्स वेरी रेयर. और चीफ गेस्ट कि आप एक सरबराह को तो अपनी यौम जमहूरिया की परेड के अपने साथ तो बिठा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, बट ये क्राउन प्रिंस, ठीक, यानी ये आइंदा आने वाली नस्लों पर तो आगे की सोच है ना इसका. और उसमें भी फोकस ज्यादा हो गया अबू धाबी, ऑयल एंड हुकूमत, क्योंकि टेक्निकली तो ये सदर मकाम तो वहां है ना. बिल्कुल. और ये बात याद रहे कि अमेरिका जो भी अफगानिस्तान में जो रोल अदा करता है, जो अलकायदा के साथ जंग है, जो आईसिस वगैरह है, उसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग, कनेक्शन बिल्डिंग, फला में बड़ा की रोल यूएई की. राइट, एक्सक्यूज मी, ठीक, वो अभी भी जो रिसेंटली हुआ था. बिल्कुल. आपको अगर अमेरिका जाना हो तो आप अगर अबू धाबी से फ्लाइट जी, तो आपकी इमिग्रेशन वहीं हो, तो आपकी इमिग्रेशन वहीं हो जाती है, और एयरपोर्ट पे लिखा होता है वेलकम टू अमेरिका. जी जी जी, आप फिर आप उतरते हैं, अपना बैग उतारते हैं और अमेरिका में एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं. अब उसके मुकाबले में हम लोग यही कहेंगे कि गाली कोई नहीं, क्योंकि चीन अपना यार है और सीपेक है और रूस है, तो वो गुड स्टोरीज अपनी जगह. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो नए अलायंसेस बनने जा रहे हैं, देखना चाहिए कम से कम, हमें उन्हें गौर से देखना चाहिए. ठीक, चलो आज का वक्त भी हमारा खत्म. आ रहे हैं, वो किसी और पर्पज से आ रहे हैं, और यूएई के शहजादे भी यहाँ शिकार करने आते हैं, सऊदी अरब के शहजादे आते हैं, वहां जा रहे हैं. क्या अनिका, देखिए ये वो हमेशा अपने प्रोग्राम में हम ये जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि जब इंटरनेशनल रिलेशन है ना, वहां पे आपके नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं. अब यूएई के शहजाद वली अहद वहां पे गए, मोहम्मद जाहिद अल नहयान साहब, उनको मोदी साहब ने देखा, आप तस्वीर देखें, वो उन्होंने प्रोटोकॉल को वायोलेट करके वो उस पे टामक पे चले गए, उनको जहाज से उतर दी, उनके उन्हें बड़ी वो पंजाबी का ना कोट के जफ्फी डाली और उनके साथ यूएई में जाके मस्जिदों में सेल्फियां भी बनाते रहते हैं, सेल्फियां भी बनाते हैं, और वो उनको बुलाया, वो वहां पे आए हैं और आज उनके वो चीफ गेस्ट होंगे. और मैं 2012 के अंदर मुझे मौका मिला, मैम वो ये जो इनका जो इंडिपेंडेंस डे मैंने किया हुआ है, तो बहुत ग्रैंडेड किस्म का वहां पे फंक्शन होता है, ये चीफ गेस्ट है वहां पे. सवाल रेज करने की जरूरत है ना. हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो है हमारे मुस्लिम उम्मा की, वो जब सऊदी अरेबिया से हमें कॉल आती है पाकिस्तान भाग पड़ता है, हमें यूएई से कॉल आती है हम भाग पड़ते हैं, हमें ईरान से कॉल आती है हम भाग पड़ते हैं, अपने मुल्क के मफाद को साइड पे रख लेते हैं. लेकिन जब अब इधर देखें, अब यूएई को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था, उधर कश्मीर के अंदर जिस तरह जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है, वहां पे रोजाना की तादाद पर लोगों बच्चों को अंधा किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और एक सियासी और रियासती दहशत गर्दी जो वहां पे हो रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में यूएई के शहजादा साहब हैं, उनको थोड़ा एहसास करना चाहिए, वहां पे मुसलमान मर रहे हैं, लिहाजा किसी और मौके पे आ जाते हैं, हम उनको रोक रहे नहीं रहे, वो एज ए सॉवरन कंट्री उनका ये राइट है, वो जा सकते हैं और उनकी मर्जी है जाए या ना जाए. लेकिन थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि इस खिते के अंदर जो इस टाइम जो एक क्लैश पॉइंट बना हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो कश्मीर है, और कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है. आज ये जो
इस्लामिक मसला ये जमहूरियत है के कि मौके के जब ऊपर। हमारी इस्लामिक ब्रदरहुड की बात आती है तो हम लोगों को बड़ी खलीजें नजर आती हैं, यहाँ हम लोगों को नजर आता है गैप्स हैं आपस में। OIC को देख ले, वो कुछ नहीं करता, कश्मीर के मामले पे और फलस्तीन के मामले पे कोई खातिर ख्वाह चीज हम लोगों को नजर नहीं आती। दूसरी तरफ तमाम दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती हुई नजर आती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी 7 ममालिक के वीजा के जो सस्पेंशन की बात की, इसके अंदर से अभी 6 का नाम नहीं आया, एक अफगानिस्तान का नाम गर्दिश कर रहा है। अगर हम इत्तेहाद नहीं हमारा होगा, मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे, हम लोग फिरका वारियत में या जनरल तनाज़ात में पड़े रहेंगे, तो कैसे दुनिया के अंदर अपना कोई झंडा गाड़ सकेंगे सुहेल साहब? फिर तो इसी तरह रहेगा मामला। अनिका, उसकी जो ट्रंप की बात की, उसकी बुनियादी वजह ये मुस्लिम उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसका आज अमली तौर पर मुजाहरा करने जा रहे हैं अबू धाबी के जो शहजादे हैं भारत जाकर, जब कश्मीरियों के अंदर कश्मीर में इतने जुल्म हो रहे हैं, जुल्म बर्बरियत की नई दास्तानें उन्होंने वहां पर रकम की हैं, तो यही वो अप्रोच है जिसकी वजह से 7 ममालिक के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है और दुनिया भर के अंदर मुस्लिम ममालिक को मुश्किलात का सामने। सिर्फ यही नहीं, शेख शहजादे जो है वो न सिर्फ वहां जाके यौम जमहूरियत तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं, बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे जो अनाउंसमेंट हुई है उनकी जानिब से भारत के अंदर $62 अरब से जायद सरमायाकारी करने का भी ऐलान किया गया है। और ये सरमायाकारी होगी, कर्ज ये कर्ज नहीं है, जो सीपैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया उसके ऊपर उसकी लोग बात करते हैं, कंसर्न लोगों के लिए बना हुआ है, कितनी बड़ी रेवोल्यूशन है, हमें भी हुकूमत इतना बड़ा क्लेम करती है, वो कर्ज है और वो $46 बिलियन है। और उसके साथ जो चाइना के मुकाबले में एक बहुत कम छोटा मुल्क है, छोटी मौशियत है, वो $62 अरब की सरमायाकारी करके मुस्लिम दुनिया कश्मीरियों को और पाकिस्तान को क्या पैगाम देने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कतर जिसके साथ हमारे इतनी गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों की इतनी तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का है इंडियंस को दिया गया है, इंडियन कंपनीज को। इंडिया को ये स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनका वीजा लगेगा और वो जाके अपना काम करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर जाना किस कदर मुश्किल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। घुमन साहब ने शुरू में बहुत अच्छी बात की, नेशनल इंटरेस्ट। यहां पे जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर काम होगा ना, तो फिर यही चैलेंजेस और इन्हीं तबाही का हमें सामना करना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट जब सामने नहीं होते तो फिर इसी किस्म की जो उसके अंदर अदम तवाज़ुन पैदा होता है और अल्टीमेटली तमाम ममालिक उससे सफर करते हैं और पाकिस्तान खसूसी इस नतीजे में सफर करता है। प्रॉब्लम है कि हमारी डिप्लोमेसी और उनकी डिप्लोमेसी में बड़ा फर्क है। हमारी डिप्लोमेसी पर्सनल डिप्लोमेसी होती है, यानी अगर हमारे किसी लीडर को मसला हो, वो सऊदी अरब चला जाए, उनको जगह मिलती है, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो। हमारे किसी लीडर को पर्सनल मसला हो, अमेरिका के अंदर 10 लोग खड़े होते हैं उनके मसले हल करने के लिए। जरदारी साहब को देख लीजिए, जॉन मैकेन के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का मुल्क का मसला होता है तब हमें कोई नहीं नजर आता। क्यों? अगर अपने जाती मफादात के लिए इतने अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं तो मुल्क के लिए देखें, बार बार हम इस इशू को हाईलाइट कर चुके हैं। आपका फुल फ्लेज फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन पॉलिसी आप प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी से रन करना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया कि आपने मोदी की इनॉग्रल सेरेमनी पे जाना है, आप गए, आपने डिसाइड कर लिया मोदी को आपने अपनी पोती की शादी पे बुलाना है, आपने बुला लिया, सबके सामने आपने देखा जाती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इस तरह कतर से आपको खत चाहिए, पनामा के इशू पे एक खत आ गया, सुहेल ने कहा हुआ है कि एक और भी खत आने वाला हो सकता है, आज वो एक और भी खत वहां पे पेश हो जाए कि ये देखें, ये वो दलाइल हैं, ये वो शवाहिद हैं जिसकी बेस पे हमें लंदन में फ्लैट दिए। इशू वहीं पे आ जाता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपका प्राइम होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पे आपका कोई पूरी दुनिया के अंदर ये तो एक कहते हैं एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, आज से नहीं सदियों से आ रहा है कि जब आपके नेशनल इंटरेस्ट है वहां पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल साइड लाइन हो जाना चाहिए। एक जो डोनाल्ड ट्रंप की बात की, अभी जो इंटरनेशनल मीडिया में जो बाकी ममालिक की उसको लिस्ट में, उसमें शाम है, इराक है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सूडान नाम आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि ना आएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वो शुरू में ये कहा, ऐसे एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की थी वो सारा उस पर अमल कर रहा है। पहले उसने देखे वो ओबामा केयर रिवर्स, मैक्सिकन वॉर ऑर्डर हो गया, बनेगी। अच्छा सुने तो सही ना, उसके बाद अभी ये जो कल उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो जो पैसिफिक रिम के ऊपर सारे ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके साथ ट्रेड पार्टनरशिप वो करने जा रहे थे, उसको भी रिवर्स कर दिया। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, अभी देखना ये है कि सेनेट में, हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह में इनको कितने चैलेंजेस ये जो ऑर्डर्स हैं वो कर सकते हैं, वो एज ऑफ नो ये वो चीजें वो खत्म हो गई है। चले अब देखना है इनको कितने चैलेंजेस आगे फेस करने पड़ेंगे। चंद दिन के अंदर अपने वादे पूरे करने के अंदर सिग्नेचर्स तो बड़े कर दिए, लेकिन ये सिग्नेचर्स रह पाएंगे या इनकी स्याही मिट जाएगी, ये देखेंगे।